Hello students, welcome to the next lecture on the inner product space. Today I will explain you the next important property of the inner product named as triangular inequality. As you can see, it defines the norm of the x plus y is less than or equal to norm of x plus norm of y. Myself Dr. Harish Kirk, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned the concept of the inner products. As you can see in these thumbnails, inner product, various examples, norms and the Cauchy-Schwarz inequality. ये सब लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? You can follow my playlist inner product space. तो इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा डिटेल easiest वे में पूरा लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा. फाइन. तो you can follow it and watch from the starting to the end so that you can learn the inner product deeply with the help of easiest example. चलिए, first of all, what is the triangular law? So the next result is triangular law. The last lecture was on the Cauchy-Schwarz inequality. Fine. सबसे पहले एक लेंथ का एक x ले लेते हैं and this is my this is OAB. X is the length of the vector OA, y is the length of the vector AB. So by using the triangular law of the vectors, I can write AB is x plus y. Clear? यही होता है ट्रायंगुलर लॉ. नाउ व्हाट इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सजेस्टेड? द ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सजेस्टेड यू द लेंथ ऑफ द OB is always be less than equal to the length of the OA and length of AB. Make sure students I am talking about the length of the vector. Fine. और नॉर्म के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? Length of the vector is called as norm. So what is the length of the vector OB? That is the norm of, fine, it is less than of OA, length of the x plus length of the y. That is the called as the triangular inequality. Fine. Or in other words, you can say the geometric interpretation is the length of the sides of the longest side of the triangle is less than equal to sum of the length of the other two sides. Or in other words, we all know the triangular inequality will provide you the shortest path between the 2 points of the line segment. The proof is a very simple. I can complete the proof in just 3 to 4 lines. सबसे पहले क्या, कोई भी इनर प्रोडक्ट हो, फाइन, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. और बिकॉज ये इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है. इक्वालिटी होल्ड कब करेगी? व्हेनेवर x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट. लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? यू कैन राइट y एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द x. यही होता है. बट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आपके पास अल्फा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. फाइन. अगर आपको याद हो इस लास्ट लेक्चर में कॉची-श्वार्ट्ज लेमा में, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द कॉची-श्वार्ट्ज लेमा, उसमें भी यही था. लेकिन उसमें अल्फा की वैल्यू क्या थी? इट कैन बी एनी स्केलर. इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. बट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव अल्फा. क्लियर? अब फिर से प्रूफ कॉची-श्वार्ट्ज लेमा की तरह ही करेंगे. फाइंड कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. एक्स और वाई कहां पे है? वी में. तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं आपके पास? केस 1 क्या हो सकता है कि वेक्टर ही आपका 0 हो जाए, इधर एक्स और वाई. फाइन. केस 2 क्या हो सकता है? जो भी आपके वेक्टर्स हैं एक्स और वाई, that is a scalar multiple of the others. And the case 3rd is when y is non-zero, x is non-zero and y is not a multiple of the alpha. Remember students, we all know norm of the x is 0 if and only if x is equal to 0. Fine. So तीनों का प्रूफ हम दो लाइन में कंप्लीट कर देते हैं. तो फर्स्ट पार्ट, what will happen if norm of x is 0? That implies either x is 0 और y is equal to 0. ये मतलब हुआ अगर x और y 0 है then we can start from the left hand side. क्या होगा ये? This will be, अगर x 0 है then it will be y if x will be 0. Fine. और it will be norm of x if y will be 0. और राइट हैंड साइड, अगर आपका x 0 है तो राइट हैंड साइड विल बी y. Fine, which is a match. And if y 0 है then it will be x. That means the equality holds in case of the case number 1. Case number 2, when y is a multiple of the
alpha x where alpha is some non-negative. Fine. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, x प्लस वाई, y की वैल्यू फिल कर दो आप, x प्लस अल्फा x. Fine. X will be common. Then what is the property of the norm of alpha x? It is absolute value of the alpha, norm of the x, because norm is always a positive number. So I can write this number is 1 plus alpha and norm of the x. That is my left hand side. अब right hand side को start कर लेते हैं. Norm of the x plus norm of the y. I can substitute the value of y. Norm of the x plus y is equal to alpha x. Fine. Again I can apply the property. That number is alpha. Fine. I can take a more, norm of x is a common. Then it will be 1 plus. Fine. But alpha is my non-negative. तो अगर non-negative है, absolute value of the alpha must be alpha. Fine. तो ये क्या बन गया? 1 plus alpha. Fine. Absolute value of the 1 plus alpha into norm of x. And you can see from this left hand side and the right hand side, that means equality occurs. So पहला केस और सेकंड केस में इक्वालिटी अकर हो गई. थर्ड केस, whenever norm of x is non-zero, norm of y is non-zero and so on. So I can start from the left hand side. Fine. इसको क्या लिख सकता हूं मैं? I can write this number is x plus y and x plus y. अब इसको ओपन कर देते हैं. That is x comma x plus x comma y plus y comma x plus y comma y. यही होगा. x and x will be norm of the x square. y and y will be norm of the y square plus x comma y. और इसको y comma x को by using the complex conjugates of the inner product I can write as a x comma y complex conjugate. क्लियर? अब सिर्फ इतनी चीज को देखते हैं, बिकॉज हमें ये नहीं ना चाहिए नॉर्म, हमें सिर्फ नॉर्म चाहिए, इसको खत्म करना है आपको. सो यू कैन सी x comma y, अगर मैं इसको z ले रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द z प्लस z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, दैट इज माई रियल पार्ट ऑफ द z. फाइन. और आई कैन से रियल पार्ट ऑफ द z. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई न्यूमिनेटर की? सो आई कैन से z प्लस z इज ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ द. फाइन. तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ. ठीक है, ये लिख सकता हूं इसे मैं बाय यूजिंग द रिलेशन रियल पार्ट ऑफ क्वांटिटी. अब आप देखो, क्योंकि आपको क्या चाहिए? लेस देन का साइन, एंड वी ऑल नोस रियल पार्ट ऑफ द z इज ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द z. यही होता है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z में तो कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा ना, इमेजिनरी पार्ट का पार्ट. सो आई कैन राइट दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. फाइन. और यहाँ पे ट्वाइस है, सो इट विल बी, चलिए यहाँ पे इट विल बी ट्वाइस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स कॉमा वाई. ऐसे तो बनेगा. क्लियर? अब आप ये देखो, क्या आपके पास कोई रिलेशन है जो इनर प्रोडक्ट पे, फाइन, और नॉर्म पे डिफाइन होता हो? कोई ऐसा रिलेशन जो इनर प्रोडक्ट और नॉर्म पे हो? यही तो मैंने बताया था आपको, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. फाइन. द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इज हियर. फाइन. तो आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. दैट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. यहाँ पे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा दो, प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई. तो ये क्या बन गया आपके पास? दिस है a प्लस बी होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, राइट हैंड साइड है, तो दैट विल बी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट. हेंस द combining all the cases we will get the required result. But make sure students, यहाँ पे if and only if है ना, equality holds, but converse is not true. Converse का मतलब, if I assume x and y are linearly dependent, fine,
ये क्या कहते हैं, इक्वालिटी अकर करेगी इफ एंड ओनली इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट फॉर सम नॉन नेगेटिव अल्फा। यहां पे वर्ड नॉन नेगेटिव अल्फा जरूरी है। फाइन, इफ एक्स एंड वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स। फाइन, तो अल्फा तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट के केस में। तो अगर अल्फा आपका आर में है तो इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ये नेसेसरी कब होगा? इट इज नेसेसरी ओनली if and only if alpha whatsoever the real is my positive। क्लियर? तो मैं इसके लिए काउंटर एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप कोई भी एक x और कोई भी एक y ले लो, टू डायमेंशन में R2 प्लेन ले लेते हैं। फाइन, अल्फा की एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से माइनस। ओके, अल्फा इन दोनों से कोई रिलेशन मिलेगा? क्लियरली से y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। फाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा इज माई माइनस ऑफ 2। यही हुआ ना? सो क्लियरली से एक्स एंड वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट और अल्फा आपका क्या है? माइनस ऑफ 2। फाइन, लेकिन दिमाग में रखो अल्फा चाहे आपकी ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, नॉन नेगेटिव नहीं है ना। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका अल्फा रियल में से बिलोंग करता है तो ये कंडीशन से कन्वर्ट्स टू नहीं होगा। कन्वर्ट्स टू तभी होगा अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है। क्लियर? सो देखो कैसे नहीं सेटिस्फाइड होगा। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। फर्स्टली नॉर्म ऑफ एक्स निकाल लो, कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 + 1 5। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स विल बी √5। कैन यू फाइंड द नॉर्म ऑफ वाई? इट विल बी रूट ऑफ वाई स्क्वायर, सो -4 स्क्वायर प्लस 16, so 20, that is a 2√5. What is my norm of x plus y? So can you find the value of the x plus y? X plus y will be -1 and 2. So that number will be under root of 1 plus 4. It is a √5. तो आप यहीं से देख सकते हो norm of x plus norm of y is not equal to norm of x plus y. ये क्यों आया? Because your alpha is not greater than 0. अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन 0 है देन द रिजल्ट इज इफ एंड ओनली इफ। क्लियर? बिकॉज ऑफ द नॉन नेगेटिव अल्फा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एनी एक्स एंड वाई विच बिलोंग्स टू द वी इज माई इनर प्रोडक्ट स्पेस, द रिजल्ट्स फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल। आपको नॉर्म ऑफ एक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या बनाना है? x माइनस वाई, तो मैं इसमें से एक माइनस कर देता हूं और एक प्लस कर देता हूं। तो यहां पे देखो ये एक तरह से a प्लस बी बन गया ना। तो बाय यूजिंग दैट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आई कैन राइट एज ए नॉर्म ऑफ a नॉर्म ऑफ b, सो दैट इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई प्लस बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस नॉर्म ऑफ y को मैं लेफ्ट साइड पे ले जा रहा हूं। देन नॉर्म ऑफ x माइनस norm of y is less than equal to x minus y। क्लियर? क्योंकि आपका मॉडुलस है ना, वी ऑल नोस। अगर यहां पे मान लो a है, इट इज लेस देन इक्वल टू b, इसका क्या मतलब होता है? माइनस b इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू प्लस b। फाइन, तो ये वाला पार्ट आपका क्या प्रूफ हो गया? दिस इज माई राइट हैंड साइड। अब आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या कर दें हम? I can interchange the value of the x and y. Fine. I can interchange x and y. और यहां से मैंने x से स्टार्ट करा था, y से स्टार्ट कर लो। तो नॉर्म ऑफ y को क्या लिख सकता हूं मैं? y माइनस एक्स प्लस एक्स। फाइन, इस पे भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देते हैं। y माइनस एक्स प्लस, फाइन, x को दूसरी तरफ ले जाओ, सो दैट विल बी नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो तब भी ये पॉजिटिव ही रहा ना। फाइन, इस वाली लाइन में से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले देता हूं देन इट इज स्टिल एज ए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फाइन, और अदरवाइज आप सिंपल इंटरचेंज कर सकते हो, और अगर आप इंटरचेंज नहीं करना, आपको समझना है, तो आप इसको डिराइव कर सकते हो बाय द सेम मैनर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल गया आपको? The inequalities hold. Clear? So make sure students the difference between the triangular inequality and the Cauchy-Schwarz inequality
सिर्फ इतना ही है, उसमें y इज इक्वल टू अल्फा एक्स. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव, बट in case of the Cauchy-Schwarz inequality, alpha can have any real number. क्लियर? सो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे. वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द ग्राम स्मिथ प्रोसेस, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस. Fine. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.